So yeah, hello guys, welcome to the second episode of this series. And ये वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? We're going to talk about support and resistance. I'm going to teach you support resistance क्या होता है, support resistance plot कैसे करते हैं, and how this is going to help you is कि from the last video now you know what is candlesticks, some basic candlestick patterns, and you know how to analyze a market using candlestick. So to give you another tool to increase your accuracy of your predictions, we are going to learn how to draw supports, how to draw resistance. तो उसके वहाँ पे जाने के पहले we'll understand a very basic concept in economics, which is supply demand और price कैसे affect होता है. First I'll just state it for you. If supply is greater than demand, then the price of any commodity falls. But if demand is greater than supply, then the price increases. Abhi, this is nothing. It doesn't matter whether you have studied economics anytime in your life or whether you're even in commerce, because it's a thing about common sense, right? Even like sometimes during monsoon, you go to go X or Y vegetable, and you ask the vendor ki why suddenly itna prices kyun बढ़ गया, and he'll just come up with an excuse that माल नहीं आ रहा. What is mal here? Mal is basically supply. Supply कम हो रहा है and demand is pretty much the same. So अगर supply कम हो रहा है and demand is pretty much the same, the prices of the commodity is going to rise, right? Now, like if we take a numerical example, let's say कि there are 20 suppliers and there are only 10 buyers. The demand of a product is only 10, whereas market में supply 20 है. And these suppliers know कि only out of the 20 suppliers that are there, only 10 of them are going to be able to make a sale. So what are they going to do? They're going to try reducing the cost जितना भी उन लोग नीचे लेके आ सकते हैं, right? Because that's the only way the buyers will be willing to buy from them. But what if it's the opposite? कि अगर 20 people want to buy a product, but only 10 people are willing to sell. So now these 10 people have these 10 buyers, sorry, these 10 suppliers have an advantage. They know कि उनका product का demand ज़्यादा है, so they can charge more, they can charge a premium, right? So that is how supply demand works and how supply demand affects prices. Just to reiterate, अगर supply is more than demand, then the price of that commodity is going to fall. If the demand is more than the supply, then price is going to rise. It's just common sense, right? जितना अवेलेबिलिटी है, जितना स्कार्स है एक चीज, उतना ज्यादा उसका प्राइस पॉसिबिलिटी है. whereas जितना abundant है एक रिसोर्स, उसका प्राइस उतना कम होने का पॉसिबिलिटी है. So now or these support resistance, they're nothing but our levels of supply and demand. तो ये जो सपोर्ट होता है, राइट, दिस इज आवर लेवल ऑफ डिमांड. तो लेवल ऑफ डिमांड मतलब क्या? जब भी प्राइस कम्स एंड टचेस आवर सपोर्ट, this is where the buyers are sitting. So buyers are happy कि चलो अगर ये प्राइस पे आ रहा है, we're getting the commodity at a good price. So this is where the demand kicks in. यहाँ पे सप्लाई कम हो जाता है और डिमांड बढ़ जाता है. वो इसलिए जब भी सपोर्ट पे प्राइस आता है, वो यहाँ से वापस बढ़ना चालू होता है. सेम थिंग अगेन हियर, देखो वापस सपोर्ट पे आया. दिस इज where the buyers are, this is where the demand is. So this is where people start buying again. Whereas जो upper level है resistance, that is our level of supply. तो जब प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सप्लाई ऑफ द स्टॉक इज काफी, बट उतना डिमांड नहीं है, तो प्राइस अपने आप गिर जाता है. सेम थिंग वापस यहाँ पे देखो, सप्लाई काफी है ये स्टॉक पे, ये लेवल, दिस इज आवर रेजिस्टेंस, राइट? सो दिस लेवल पे देयर इज अ लॉट ऑफ सप्लाई, but there's not adequate demand, and that's why the price again comes down. And the price, why does it come down? To the point जहाँ पे demand होता है, and again it goes around this range. So now यहाँ पे तो already support and resistance बना हुआ था, but we're going to learn in this video how to draw support and resistance. So let's move on to the charts now. So now since let's assume, मैं assume कर रहा हूँ कि आप लोग beginners हो, आप लोग को उतना market में experience नहीं है. So the very first thing जो आपको करना चाहिए is that you should go to either daily का candles या weekly का. So अपना first example is SBI, because I want to show you कि how this works in multi-year time frames. ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज कल चलेगा. This is something that even works over time, over the years. तो पहले आप ये जोन देखना. ओके, एक सेकंड मैं आपके लिए मार्क करता हूँ. अब ये जोन देख रहे हो, यहाँ से मार्केट ने पहले रिवर्स किया है. काम करो, यहाँ से लेट्स जस्ट कंटिन्यू सीइंग फ्रॉम हियर, ठीक है? अगर आप इसको और पुल फॉरवर्ड करते हो, यहाँ से भी हम ले सकते हैं. दिस वाज अ जोन
पहले जहाँ से मार्केट प्राइसेस अप गए, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, पीपल आर बाइंग, राइट? एंड दिस इज अ जोन जहाँ से प्राइसेस, यहाँ से प्राइसेस नीचे है, यहाँ से रिवर्स आया, सो इन अ वे दिस इज अ बाइंग जोन, राइट? उसके बाद जब प्राइस वापस ये जोन पे आया जो ये पिंक शेडेड है, क्या हुआ? Again people started buying, right? So what do we understand? That this zone is where the buyers are sitting. If buyers are sitting, मतलब क्या, this is the zone where there's demand. This is the zone where अगर price आएगा नीचे, high chances है कि it'll go up. So again what happened when prices came at this range? वापस the price went up, right? And after that it came a bit lower, but again यहाँ से prices started kicking in. So what does this mean? This is our area of demand. This is our area where buyers are sitting. अभी आप एक बार, क्या मैंने आपको डेट्स नहीं बताया ना, ये देख रहे हो, ये जुलाई 2009 का है, ये क्या है, ये जैन 2012 का है। अराउंड 3 years later the support was still acting, और उसके बाद ये वाला कौन सा, ये 13 है, so just 1 year difference, this is 14. So after from 9 to 14 this level was इतना powerful, इतने buyers बैठे थे at this demand zone. And after that what happened? This is February 14th, prices went up, और उसके बाद again when it came at support, that is our 8 Feb, whatever, 15th of जो भी है, 16th 2016 को, again from 14 to 16 it came here again, same area पे demand zone था, और वहां से prices वापस भागने लगे. So you're seeing how good supports work in higher time frames. और अगर आप यहाँ भी देखोगे वापस in 21 जून 20 को वापस प्राइस आया at this level, और यहाँ से ही रिवर्स करके चला गया, just flew away. So it's very unlikely that the price is again going to come here. Maybe in some future market fall, maybe in the next 10 years if we get a market fall, there are chances वापस यहाँ ये इस level से रिवर्स करेगा. And अगर आप देखोगे, मैं बस ये प्लॉट किया था, this ये within this major supply एक और सप्लाई जोन है, ये देख रहे हो आप, सपोर्ट 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 सपोर्ट. तो ये भी एक सपोर्ट चल रहा था, और बाद में जब ये सपोर्ट टूट चुका था it fell. So there's another concept that I'll be talking later in the later part of this video, कि जब सपोर्ट टूट जाता है ना, then it becomes a resistance. This is one example. बस याद रखना इसको, समझने की जरूरत नहीं है, just remember this example. जब सपोर्ट, ये जो सपोर्ट, I hope you understand how this is a support, right? Prices are reversing from here, reversing from here, reversing from here, reversing from here. What does it mean? यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, यहाँ पे डिमांड है कमोडिटी का, तो अगर ये टूट गया मतलब क्या, बायर्स आर गॉन नाउ. तो ये टूटने के बाद मार्केट नीचे गया और वापस ऊपर आया at our earlier support. So this support is now going to act as resistance. ये हम we'll talk about later in the later part of the video. So now let's go to some more examples ना, एक ही क्यों example में जाना है. अभी पहले हम again एक और now next we have LIC. Now LIC में ना ये आप एरिया देखो, ठीक है, जब भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है ना, पहले तो लुक एट द एरियाज वेयर द प्राइस इज रिवर्सिंग फ्रॉम. एंड कितने आप ऐसे एरियाज ढूंढ सकते हो जहाँ से प्राइस रिवर्स हो रहा है. लाइक अगर अभी आप यहाँ देखोगे, पहले द प्राइस रिवर्स फ्रॉम हियर, देन द प्राइस रिवर्स फ्रॉम हियर, देन द प्राइस रिवर्स फ्रॉम हियर, और फिर वापस यहाँ से रिवर्स किया ना. तो अगर आपको दो एरियाज मिल जाते हैं, एरिया 1 और एरिया 2, नाउ यू कैन से दैट दिस इज आवर सपोर्ट, राइट? यहाँ से प्राइस रिवर्स कर रहा है, यहाँ से प्राइस रिवर्स कर रहा है, आपको ये 2 पॉइंट मिल चुके हैं, तो आप ये ड्रॉ कर सकते हो, बोल सकते हो कि ये सपोर्ट है. तो अगर वापस प्राइस आया यहाँ पे, यू कैन से कि ओके, हाई चांसेस है कि वापस द स्टॉक कैन गो अप फ्रॉम हियर. एंड दैट इज व्हाट हैपेंड ना. और दैट इज, हम सो फार हम लोग सिर्फ सपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, अभी रेजिस्टेंस का भी देखते हैं ना. सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? इज द ऑपोजिट ऑफ सपोर्ट. रेजिस्टेंस इज वेयर सेलर्स आर सिटिंग, रेजिस्टेंस इज वेयर देयर इज मोर सप्लाई. तो अब अभी पहले देखते हैं चार्ट पे, पहले मार्केट इस लेवल पे आया, यहाँ से रिवर्स किया, वापस ये लेवल पे आया, यहाँ से रिवर्स किया, अगेन इट केम ओवर हियर, यहाँ से रिवर्स किया. वी गॉट 3 पॉइंट्स. सो इट इज वेरी सेफ टू से कि अभी जो ये वाला जो अपना एरिया है, दिस एरिया इज ऑफ रेजिस्टेंस. मतलब यहाँ पे सेलर्स बैठे, इस रेंज पे आएगा प्राइस तो मार्केट गिरेगा, गिरेगा नहीं एज इन स्टॉक गिरेगा. तो अभी उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आफ्टर वी प्लॉट दिस 3 टाइम्स, मार्केट वापस नीचे आया. अगेन दिस इज आवर सपोर्ट जोन, राइट? सो वी एंटिसिपेट द मार्केट टू गो फ्रॉम हियर टू दिस पॉइंट.
और वापस यहाँ से इसने रेजिस्टेंस खाया एंड फिर अगेन इट टेस्टेड द रेजिस्टेंस एरिया एंड यहाँ से वापस रेजिस्टेंस खाया. So you see that the market was for a very good period of time from December 14 to 27 June, 4 July 16. इसी रेंज पे वो अटका था. सपोर्ट्स पे प्राइस बाउंस कर रहा था और रेजिस्टेंस पे प्राइस नीचे आ रहा था. एंड जब फाइनली इसने रेजिस्टेंस तोड़ा, ये जो अपना रेजिस्टेंस है, इसने ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया. नाउ वी नो कि वंस सी अंडरस्टैंड, बिफोर ये रेजिस्टेंस तोड़ने के पहले व्हाट वाज आवर सेइंग कि इस लेवल पे सेलर्स बैठे हैं. तो जब भी स्टॉक यहाँ पे आएगा, सेलर्स आर गोइंग टू स्टार्ट सेलिंग द स्टॉक एंड दैट इज गोइंग टू ब्रिंग द प्राइसेस डाउन. पर जब ये लेवल टूट गया है ना, इसका मतलब क्या होता है कि नाउ देयर आर नो सेलर्स एट दिस प्राइस. तो क्या होगा, ओनली देयर इज गोइंग टू बी बायर्स एंड देयर इज नो स्ट्रॉन्ग इनफ सेलर्स टू सेल एट दिस पॉइंट. तो प्राइसेस विल गो अप ना. एंड मेरा जो सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको लास्ट वो एसबीआई केस में बोल रहा था कि जब अपना ये रेजिस्टेंस टूट जाता है ना, तो क्या होता है कि ये जो अपना रेजिस्टेंस जो टूट गया है, इट्स गोइंग टू एक्ट एज सपोर्ट. बिकॉज यहाँ पे जो सेलर्स थे, नाउ दे आर गोइंग टू बी टर्न्ड इनटू बायर्स. तो अभी देखो क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस टूटा, मार्केट वापस अपसाइड आया, और जब मार्केट वापस नीचे आया, जो अपना अर्लियर रेजिस्टेंस जोन था, इट इज गोइंग टू एक्ट एज सपोर्ट नाउ. बिकॉज यहाँ पे जो सेलर्स थे, दे हैव बिकम बायर्स नाउ. एंड वही उसकी वजह से द प्राइसेस अगेन बाउंस फ्रॉम योर, उसके वजह से प्राइसेस बाउंस फ्रॉम योर एंड अगेन वापस जब ये जोन पे आया, बाउंस हुआ, और आफ्टर दैट वी हैड सम गुड अपसाइड of कितना परसेंट, of 48-50%. So that is how support and resistance zones work. And now that I've told you this, मैं थोड़ा इसके बारे में और reiterate करता हूँ. ये जो अपना सपोर्ट जोन था ना, जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा, एक बार मैं वापस रीड्रॉ करता हूँ. तो नाउ वी कैन सी कि चलो पहले ये एरिया पे मार्केट रिवर्स कर रहा है, इस एरिया से मार्केट रिवर्स कर रहा है, इस एरिया से मार्केट रिवर्स कर रहा है. हमें 3 पॉइंट मिल गया, दैट इज मोर देन एनफ. आपको 2 पॉइंट मिला तो भी यू कैन प्लॉट द एरिया. अब देखोगे मैंने ये एरिया प्लॉट किया है. जो अपना पहला एरिया प्लॉट किया ना, वो सिर्फ ये ऑलमोस्ट ये 2 पॉइंट्स को, मतलब माय गोल वाज कि ये रेक्टेंगल जो है इट इंक्लूड्स दीज 2 पॉइंट्स. उसके बाद मैं सिंपली एक्सीड कर रहा हूँ. अभी तो देखो ये बन चुका है, बट अगर ये नहीं बना होता ना, तो आप इसको ऐसे बना के आप एक्सटेंड करते. सो नाउ इफ यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू अगेन, अगर यहाँ से अभी 309 पे, 309 से वापस 240 पे आया, दैट इज आवर सपोर्ट. दैट इज वेयर वी कैन एक्सपेक्ट द स्टॉक टू बाउंस फ्रॉम. वी कैन एक्सपेक्ट कि बायर्स आएंगे और प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे. देख अभी स्टॉक यहाँ पे आया, सो यू कैन एक्सपेक्ट द स्टॉक टू अगेन गो अप, और फिर वो जाता है एंड देन सी अगेन वी हैड इट कम टू द सपोर्ट, यहाँ से वापस ऊपर गया. तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि दिस इज वेयर आर बायर्स आर सिटिंग, दिस इज वेयर डिमांड इज देयर एंड दिस इज वेयर प्राइसेस कैन गो अप फ्रॉम. बट अगर ये जो अपना लेवल है जहाँ पे बायर्स बैठ रहे, ये टूट जाता है, लाइक ये कैंडल में देख रहे हो आप, ये वाले कैंडल में टूट चुका है इस अपना ये सपोर्ट. तो अभी व्हाट डज इट मीन, इफ द लेवल व्हिच वाज बीइंग डिफेंडेड बाय बायर्स, ना बायर्स अग्रेसिवली खरीद रहे, वो टूट चुका है, तो मतलब क्या, नाउ देयर आर नो बायर्स हियर. नाउ देयर आर, ये बायर्स आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू सेलर्स. तो अभी अगर आप देखोगे, प्राइस यहाँ से गिरा, फिर वापस ऊपर आया, और ये ऊपर कहाँ पे आया, अपना जो प्रीवियस सपोर्ट था ना, दैट विल एक्ट एज रेजिस्टेंस नाउ. व्हाई? बिकॉज़ जो बायर्स थे दे आर कन्वर्टेड इनटू सेलर्स. तो आप देखोगे जो इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था यहाँ पे आने का, यहाँ से ही उसने रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ से ही प्राइस वापस नीचे गिर गया. एंड गिरने के बाद अगेन ऑन द सेकंड अटेम्प्ट इट वाज एबल टू ब्रेक. बट आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक. ये जो सपोर्ट था, पहले बायर्स थे, तो बायर्स थे तो क्या था, डिमांड था. अब बायर्स नहीं है, सेलर्स है. सेलर्स है तो क्या है, सप्लाई ज्यादा है. तो सप्लाई ज्यादा है तो क्या होगा, स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा. एंड विद एलआईसी इट वाज मोर एविडेंट. देखो प्रॉपर नीचे जाके, वापस नीचे जाके बहुत अच्छा अपसाइड दिया. एंड उसके बाद वापस व्हेन द स्टॉक केम डाउन, कहाँ पे आया, वो अपना प्रीवियस जो सपोर्ट था ना, अब देखो ना 2014 का सपोर्ट इज बीइंग रिस्पेक्टेड इवन इन 2018, एंड सेम चीज वापस हैपेंड इन 19. और जब ये अपना सपोर्ट टूट चुका था, सेलर्स आ चुके थे ना, एंड ये तो दिस वाज अ मार्च फॉल, तो ये तो फेल अ लॉट. नाउ लेट मी जस्ट टॉक अबाउट अनदर थिंग. सो व्हाइल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, आई विल जस्ट give you a glimpse of something maybe I'll cover, maybe that I'll be covering in the future. Candlestick patterns, right? So this is a candlestick pattern.
HNS मतलब हेड एंड शोल्डर, ये लेफ्ट शोल्डर होता है, ये हेड होता है और ये राइट शोल्डर होता है। यूजुअली अगर आप ये किसी स्टॉक में देखोगे, यू कैन एक्सपेक्ट द स्टॉक टू गिव यू गुड डाउनसाइड में मूव, तो उसमें यही हुआ है। और अगर आप ये इसमें देखोगे, आपको क्या समझ रहा है यहाँ पे सपोर्ट क्या होगा, काम करता है, वील रिमूव दिस, वील प्लॉट इट फ्रॉम द बेसिक पॉइंट। पहले इस रेंज से मार्केट ने रिवर्स किया, मतलब बायर्स यहाँ पे वापस जब मार्केट इस रेंज में आया, इसी रेंज से इसने रिवर्स किया है। तो यूजिंग दीज 2 पॉइंट्स ही हम अपना सपोर्ट प्लॉट कर सकते हैं, राइट। इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं बस, उसके बाद क्या करेंगे, एक्सटेंड इट फर्दर, ठीक है। नाउ तो आपको दिख रहा है कि इसने निभाया है, बट व्हेन यू आर डूइंग इट इन द फ्यूचर, यू माइट नॉट अंडरस्टैंड, लाइक दिस माइट बी योर ओनली ग्राफ, बट यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर प्राइस वापस, लाइक अगर सोचो मैंने ये दो प्लॉट किया है, अभी चार्ट्स नहीं बने, जैसे अभी प्राइस 460 पे है, वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर स्टॉक वापस 460 से 380 पे आया, तो वो 380 से रिवर्स कर सकता है, बिकॉज बायर्स आर सिटिंग हियर। तो अभी देखो वापस यहाँ पे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, बायर्स बॉट, एंड अगेन व्हेन इट केम ओवर हियर, बायर्स बॉट इट, बट उसके बाद क्या हुआ, अपना ये जो सपोर्ट है, इट गॉट ब्रोकन डाउन, राइट। अभी जब मैंने आपको क्या बोला अभी 2 मिनट पहले, जब अपना सपोर्ट टूट जाता है, तो क्या होता है, जो भी बायर्स थे यहाँ पे, दे आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू सेलर्स। तो नाउ दिस सपोर्ट इज गोइंग टू एक्ट एज रेजिस्टेंस। तो जब वापस ले लेवल पे ऊपर आया मार्केट, क्या हुआ, प्राइस गिरा, क्यों, बिकॉज नाउ सेलर्स आर हियर, मतलब यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है, तो देयर आर चांसेस दैट द मार्केट विल गो डाउन फ्रॉम हियर। Now again, one thing I want you to understand is that all this support, resistance, this does not give us certainty. ये हमें नहीं बताएगा कि market for sure यहाँ से ऊपर जाएगा या market for sure यहाँ से नीचे जाएगा. These are just tools that give you higher probability, and everything in the market is about probability. Certainty नहीं है. Certainty आपको चाहिए तो you'll have to go put your money in FDs. But if you want to be a trader, you'll have to play a little risky in the market because there's never certainty. तो जितना high आपको probability है, that much advantages you are. Now let's take some other examples. हाँ, ये एक resistance का example है, ठीक है। तो पहले तो इसको निकाल देते हैं। What do we notice over here? Price यहाँ पे आया, यहाँ से reject किया, वापस यहाँ पे आया, यहाँ से reject किया, तो यही 2 पॉइंट के साथ we can plot our resistance, right? ये बॉक्स देख, हमेशा ना, सी मोस्ट पीपल व्हाट दे डू इज दे ड्रॉ लाइंस कि चलो ये मेरा लाइन है, ये रेजिस्टेंस है, तो ये लाइन पे आएगा, रिजेक्ट होएगा। बट व्हाट आई विल एडवाइस यू इज कि आप रेंजेस प्लॉट करो, बिकॉज ऑल दीज sellers and buyers, they don't buy at a particular price point, they buy at a particular range point. तो समझ रहे हो आप, इसलिए मैं बॉक्सेस प्लॉट करने को एडवाइस करूंगा। तो अभी नाउ आई हैव माय रेजिस्टेंस, राइट, कि जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा इट कैन रिवर्स फ्रॉम। तो नेक्स्ट टाइम मार्केट इस रेंज में कब आया, यहाँ पे, राइट, और यहाँ से ही मार्केट रिवर्स किया वापस, फिर वापस ये ऊपर आया एंड यहाँ से इसने रिवर्स किया। तो दिस इज शोइंग अस दैट सेलर्स आर डोमिनेंट हियर, सप्लाई है, मार्केट गिर रहा है। एंड उसके बाद क्या हुआ, जब इधर आया अगेन इट वेंट डाउन, थोड़ा रिजेक्शन फेस किया, बट व्हाट हैपेंड व्हेन इट ब्रोक दिस रेंज, when it broke this range, अपने sellers will become buyers now. तो ये जो अपना resistance हमने बनाया है, this is going to be support. तो आप देखोगे कि जब ये रेंज टूट चुका और वापस ये मार्केट नीचे आया, तो now this level which was earlier resistance has become into support, और यहाँ पे buyers ने खरीदा, और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अपसाइड किया। तो that is what every support and resistance is support and resistance until broken. अगर सपोर्ट टूट चुका है, लेटर इज गोइंग टू एक्ट एज रेजिस्टेंस, और अगर रेजिस्टेंस टूट चुका है, लेटर इज गोइंग टू एक्ट एज सपोर्ट। सो दैट इज इन द केस ऑफ पीडीलाइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे अगेन आपको दिख रहा है कि ये लेवल से प्राइस बाउंस हो रहा है, ये लेवल से प्राइस बाउंस हो रहा है, तो अगर वापस मार्केट यहाँ पे आया, ये लेवल से भी प्राइस बाउंस हो सकता है। आप समझो कि मैं जो ये बना रहा हूँ, मैं सिर्फ ये 2 पॉइंट देके बना रहा हूँ, उसके बाद आई एम सिंपली extending it, and same thing happened over here and here, and then we had a good one side, हाँ ये मतलब उड़ ही गया, वो छोड़ो। Then what do we have? We have CDSL. Now this example I've taken you to understand कि when you come to a lower time frame, why it does not act very well. मैं भी इसके पहले आपको 1 day charts दिखा रहा था, 1 week charts दिखा रहा था। अभी क्या होता है, 1 day charts, 1 week charts ना, these are not very easily manipulated. Manipulated as in क्या? Let's say I'm an operator. मेरे को पता है कि majority of normal participants, जो अपने retail participants हैं, they are going to buy sell based on support resistance.
तो अभी मैं क्या करूंगा, आई विल क्रिएट ट्रैप्स. लाइक अभी देखो, लेट्स जस्ट रेज दिस एंड ड्रॉ इट अगेन. एंड ये टाइम फ्रेम कौन सा है? 2 आवर टाइम फ्रेम है. 2 आवर टाइम फ्रेम मतलब क्या है? ईच कैंडल रिप्रेजेंट्स 2 आवर्स. अपना पहले वाला क्या था? 1 डे और 1 वीक. तो ईच कैंडल रिप्रेजेंट 1 डे 1 वीक. तो यहाँ पे क्या है, ये लेवल से प्राइस रिवर्स किया, वापस यहाँ पे आया, यहाँ से रिवर्स किया. तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज आवर सपोर्ट एरिया, करेक्ट. एंड लेट्स लुक फॉर रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस में पता चल रहा है ये लेवल से प्राइस रिजेक्ट किया, ये लेवल से प्राइस रिजेक्ट किया. वी गॉट आवर 2 पॉइंट्स. सो वी अंडरस्टैंड कि ये लेवल भी अपना रेजिस्टेंस है. तो अभी क्या होगा कि आप ये मत देखो, आप बस ये देखो, हमने 2 लेवल्स प्लॉट किए एंड व्हाट यू अंडरस्टूड, दिस इज रेजिस्टेंस. एंड अभी ये कैंडल आया, तो व्हाट आर वी गोइंग टू बी एक्साइटेड अबाउट? एक सेकंड, आई गिव यू द प्ले वाला ऑप्शन. ठीक है. तो अभी क्या हो रहा है कि मार्केट ऐसा है, व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज कि मार्केट इज रेंज में, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है. तो व्हाट डज आवर नॉर्मल थिंकिंग टेल अस? रेजिस्टेंस टूटा, प्राइस ऊपर जाएगा. तो अभी resistance टूटा, right? So there are very high chances that a lot of retailers, a lot of normal people, they'll buy the stock here. स्टॉक इधर खरीदेंगे और अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? यहाँ ही कहाँ रखेंगे ना. यहाँ पे क्यों रखेंगे? लॉजिकल है कि ये अपना जो पहले रेजिस्टेंस जोन था, नाउ इट्स बिकम सपोर्ट जोन. तो यहाँ पे बायर्स बैठे हैं. तो अगर प्राइस वापस इस लेवल पे आया, तो इट शुड एक्ट एज सपोर्ट एंड द प्राइस शुड गो हायर. अगर वो नहीं जाता है, मतलब वो नीचे जाएगा. तो दिस इज वेयर वील कीप आवर स्टॉप लॉस एंड दिस इज वेयर वील बाय नॉर्मली, राइट. एंड दैट इज व्हाट मोस्ट रिटेलर्स मस्ट हैव डन, बिकॉज़ ये अपना रेजिस्टेंस टूट चुका है. तो यहाँ पे शुड बी बायर्स. बट उसके बाद क्या हुआ, अब तक उसका मार्केट स्टिल हैज नॉट ब्रोकन द सपोर्ट. माइनर सपोर्ट ले रहा है, बट यहाँ पे देखो, नाउ इट ब्रोक द सपोर्ट. और ये देख रहे हो, सीधा यहाँ से यहाँ नीचे गिर चुका है. एंड what I want you to understand is कि this is why I was telling you कि आप जो ये support resistance है, as a beginner on higher time frames ही देखो, that is 1 day 1 week, because these time frames are where market cannot be manipulated. So पहले तो ना understand कि यहाँ पे actually हुआ क्या है. Let's say I'm an operator, ठीक है, let's say I have a lot of capital and मैं ऐसे candles बना सकता हूँ that shows you that the market is going to go up now. तो ये जो resistance है ये टूट चुका है. So what I've done is, let's say I've created this candle and my intention of creating this candle was to trap retailers. क्योंकि मुझे पता है कि अगर resistance टूटेगा, there are a lot of traders who just buy and sell based on support and resistance. तो हजारों नहीं, much higher number might just have bought this stock because ये resistance टूटा है. तो if they bought this stock, what is my intention? कि my intention is कि now I want to trap them. तो मैं क्या करूंगा कि now that I've broke the resistance, I'm going to try getting the stock down. और जब ये स्टॉक डाउन होगा, स्टॉक वापस नीचे जाएगा, all these people that have entered the stock over here are going to sell, right? And that is when I'm going to profit, because I'm going to short the stock at higher levels. And बाद में आप देखोगे क्या होता है, price comes to a support, यहाँ पे support लिया, right? So now again, what are other group of traders? Other group of traders are those जो यहाँ पे स्टॉक खरीदेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? इसके नीचे. And it makes sense, ना? This is the zone where buyers are. तो जब तक ये जोन मेंटेन्ड है, प्राइसेस ऊपर ही जाने के हाई चांसेस है. एंड बाद में क्या होता है, we'll see what happens. Prices again go a bit higher. रेजिस्टेंस यहाँ पे टूटा है, राइट. लाइक अगर आप यहाँ पे देखोगे, प्राइसेस हैव गॉन हायर. तो अपना सेकंड ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स जो आएंगे ना, they'll buy the stock here because रेजिस्टेंस टूट चुका है, राइट. एंड बाद में आप देखोगे, हमें थोड़ा जल्दी हो गया, एक सेकंड, लेट मी स्किप इट. ये जो कैंडल आप देख रहे हो अभी जो फॉर्म होगा, इस कैंडल ने ऑल बायर्स के स्टॉप लॉसेस सेट कर दिया है. People who have bought over here, people who have bought over here, or even people who have bought here and they have kept their stop loss below this, because ये अपना बायर जोन है ना. तो people expect जब तक प्राइस इसके ऊपर है, प्राइसेस ऊपर ही जाएंगे. एंड देन मार्केट ने क्या किया, मार्केट went till this level, और जिनके भी स्टॉप लॉसेस यहाँ पे प्लेस होंगे, सबको एग्जिट करा दिया. एंड आफ्टर दैट इट रिवर्स बैक अप.
And again, if you'll see closing का हुआ, closing around support ही हुआ ना candle का, but candle went इतना below. Candle went around 3% down, and 3% down in a 1 hour time frame is a very significant amount. And that's why मैं आपको बताता हूँ कि जो आप ये support resistance देख रहे हो ना, don't see it in such time frames for now. Start with 1 day, 1 hour, and all of that. और अगर आप देखोगे, एक सेकंड, कहाँ गया ये? पहले मार्केट ने एक बार ऊपर साइड पे ट्रैप किया रिटेल ट्रेडर्स को, फिर एक डाउन साइड में भी ट्रैप किया, एंड उसके बाद ऊपर गया. आप समझो जब ये टूट चुका था ना, देयर आर अगेन ट्रेडर्स हु आर गोइंग टू कम एंड शॉर्ट द मार्केट हियर. ऐसे ट्रेडर्स हो सकते हैं जिन्होंने देखा कि चलो अपना सपोर्ट टूट चुका है, सो नाउ ऑल दीज बायर्स आर गोइंग टू बिकम सेलर्स, आई विल शॉर्ट द मार्केट हियर. उन लोग अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? ऑब्वियसली ये जोन के ऊपर, राइट? और फिर क्या हुआ, यहाँ से भी दे गॉट स्टॉप्ड आउट. So if you see this range is a very nice tricky range. पहले अपसाइड में ट्रैप किया, फिर डाउन साइड में ट्रैप किया, और अभी जो नेक्स्ट टाइम इसने सपोर्ट तोड़ा है उसको उसने निभाया, एंड आफ्टर दैट द प्राइस rocketed, right? Went from like 53% or something. But पहले इसने दोनों साइड में ट्रैप किया. तो if you were waiting for resistance to be broken to enter this trade, so you would have got trapped twice. So that is why we look at all these patterns and support and resistance at a higher time frame. So ठीक है, then what do we have? We have HCL Technologies. अभी HCL में आप देखोगे, थोड़ा मैं हायर टाइम फ्रेम जाता हूँ, 1 डे पे. HCL में भी what same thing. We'll draw this again ना. क्यों? Why should we make ready-made? 2 पॉइंट्स ढूंढो ना, से प्राइस रिवर्स कर रहा है या प्राइस रिजेक्ट हो रहा है. पहले प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर प्राइस यहाँ से रिवर्स किया, वापस प्राइस यहाँ से रिवर्स किया, और वापस प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ. तो अपने को वी गॉट 2 पॉइंट्स, वी सिंपली जॉइन देम. दिस इज व्हाट वी डू. पहले वी जॉइन देम, ठीक है, वी जॉइन दीज बोथ एंड वी सिंपली एक्सटेंड देम. उसके बाद तो अभी अगर वापस प्राइस ये पिंक एरिया में आएगा, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? द प्राइस टू गो हायर. यहाँ से रिजेक्ट किया, उसके बाद क्या यहाँ पे आया अपना सपोर्ट जोन, यहाँ से अगेन द प्राइस वेंट अप, इट वेंट लाइक 14-15% अप, एंड वापस जो अपना रेजिस्टेंस जोन था जो हमने पहले बनाया था, वहां से प्राइसेस अगेन केम लोअर, राइट? इट फेल अराउंड 7.5%. और उसके बाद जब ये अपना रेजिस्टेंस टूट चुका था, it went a lot higher, right? After this resistance zone was broken. So normally now you must have understood that there are 4 ways of trading this. Either you sell stock at, either you sell stock at resistance and earn money, or you buy stock at support. Otherwise you wait for stock to break resistance, फिर आप उसके ऊपर खरीदोगे, or you wait for the stock to break the support और आप उसके नीचे sell करोगे. So these are 4 ways to trade. और जो मैं आपको बता रहा था ना, आप एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, वो कैसे बढ़ाओगे आप? That is when you come to support and you wait for a good candle. अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है, we talk about hammer candle over there, right? A bullish hammer. तो अब ये कैंडल देख रहे हो, ये bullish hammer है, सपोर्ट रीजन पे है, तो क्या होगा? प्राइसेस विल गो हायर. सेम थिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये क्या है? बुलिश हैमर है, सपोर्ट एरिया पे है, so we can buy the stock now. Why? Because we have 2 reasons. एक, bullish hammer which tells us the price can go higher. Then support में क्या important है? Buyers bet है, so the price can go higher. So this is how we can we can trade in this. और एक चीज समझो, अगर यहाँ पे लॉन्ग गए आप, ठीक है, यहाँ पे खरीद रहे हो स्टॉक, तो आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे? मतलब where will you get out of the trade if it goes against you? It should be below this level only ना, because ये level is of buyers. If the price goes below this, the buyers will become sellers. तो you should try to कितना आप लॉस मिनिमाइज कर सकते हो उतना करना चाहिए आपको. तो अगर ये लेवल टूट जाता है, जैसे हमने यहाँ पे एंट्री किया था और उसके बाद प्राइस started coming down, so this is the level that we should get out of the trade. We should book our loss. We should not just hold on and we can like नहीं वापस buyers आएंगे. ये जोन बनाया, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए. तो yeah, that is how we trade in support and resistance, and that is how you can mix support resistance with
क्या candlestick patterns and all of that to increase your probability in trading these. So क्या आपने notice किया कि in this, right, all our support and resistance, they were horizontal lines, right? But does it mean कि buyers and sellers are always sitting, at one location only, at one price point or one range point? Not necessary, na. So in the next video is what we want to learn is trend lines, and trend lines are nothing but supports and resistance that have an angle. Like अगर आप यहाँ पे देखोगे, this is a trend line that we have drawn, और यहाँ पे भी price support ले रहा है, right? Same thing on the upside. यहाँ पे भी resistance ले रहा है, and this is not a horizontal line. And this is what we'll be, understanding in depth in the next video. At the very end of this video, the next episode, I will be, understanding trend lines. उसका आपको screen के सामने आ जाएगा, an option to view it. So you can go there and learn that as well. So you also know how our supports and resistance created with an angle, which are basically known as trend lines. So see you all over there.